Why they sing from days of old, मैं फौजी हूँ सुलीखा, मैं भी हूँ फौजी सुलीखा, मेमना के संग चलता, डरूंगा क्या गवाह बनने, घर से लूंगा उसका नाम. Am I a soldier of the cross, a follower of the Lamb? And shall I fear to own his cause, or blush to speak his name? Crucian pardon nyan allayo, kunyade pingami pon. ഭയപ്പെടുമോ ഞാൻ സാക്ഷിയാകാൻ, തന്നാമമൻ അഭിമാനം. मर जाए फिर भी जीतेगा उसके संत लड़ाई में, देखते वे सब दूर से ही जीत विश्वास की नयनों से. Thy saints in all these glorious wars shall conquer though they die. They see the triumph from afar by faith's discerning eye. ജീവൻ പോയാലും ജയിക്കും തൻ ശുദ്ധരി പോരാട്ടത്തിൽ, ദൂരെ നിന്നു ജയം കണ്ടേൻ വിശ്വാസ കണ്ണുകളാൽ. मर भी जाए तो परमेश्वर के संग लोग जीतेंगे ये लड़ाई में. दूर से उसने विजय को देखा है. They have seen victory from afar off through their eyes of faith. विश्वास की नयनों से उसने जीत को देखा है. हालेलुया. इसलिए वो लोग ऐसे वचन, ऐसे गीत गाते हैं, इसलिए वो लोग चिल्लाते हैं, इसलिए कोलाहल है, राजा का कोलाहल है. हम यशायाह के पुस्तक में है, उधर ही बने रहता. हम 60वां अध्याय में से एक वचन पढ़ते हैं. We move on to chapter 60 verse 21. तेरे लोग सब के सब धर्मी होंगे, वे सर्वदा देश के अधिकारी होंगे, वे मेरे लगाए हुए पौधे और मेरे हाथों का काम ठहरेंगे, जिससे मेरी महिमा प्रकट हो. Hallelujah. Your people shall always be righteous. They shall possess the land forever, the branch of my planting, the work of my hands, that I might be glorified. Hallelujah. तेरे जन हरे भरे ही रहेंगे. आमीन. जैसे तूने उसको बारी के समान लगाया वैसे ही रहेंगे, फलवंत होकर रहेंगे. उसमें कोई दोष नहीं आरोप किया जाएगा, उसमें ढूंढने से भी कोई गलती नहीं पाया जाएगा. There won't be any iniquity seen in Jacob. Hallelujah. They shall thrive as planted by the Lord God Jehovah, and He will be glorified in them. जिससे मेरी महिमा प्रकट हो. Amen. Lord will be glorified in all this. He will be glorified. कि परमेश्वर को उद्देश्य, ये उद्देश्य उसने आज्ञा दिया है. उसका 31वां अध्याय से हम पढ़ते तीसरा वचन. एक्सेप्ट टू सी 61 chapter 3. सियोन के विलाप करने वालों के सिर पर की राख दूर करके सुंदर पगड़ी बांध लो. That I may grant to those who mourn in Zion, to give them a beautiful headdress instead of ashes. मुकुट पहनाने पर राख नहीं. ये विलाप की एक यात्रा नहीं है. अब ये विलाप यात्रा नहीं,
This is not a morning procession. Amen. Hallelujah. ये अंतिम संस्कार के लिए जाते हुए विलाप यात्रയല്ല ഇത്. ആമേൻ. ഇവിടെ വിലാപത്തിന്റെ കരുതലിനെ മാറ്റി വെണ്ണീരിന് പകരം ആമേൻ വെണ്ണീര് തുടച്ചു മാറ്റി അവന് തെളിയിൽ അലങ്കാരത്തിന്റെ കിരീടം അണിയിപ്പിക്കുവാൻ അവൻ നമ്മെ പുറപ്പെടുവിച്ചിരിക്കുക. आमेन. विलाप दूर करके हर्ष का तेल, उसको उदासी हटाकर यश का ओढ़ना, और राख दूर करके सुंदर पगड़ी बांध लो. हालेलुया. शोभा बढ़ाया जाएगा. Not only God will gain glory and honor, I will be glorified too. You will be glorified too. परमेश्वर अधिक से अधिक महिमा पाते जरूर रहेगा, लेकिन परमेश्वर के जन की महिमा भी बढ़ाया जाएगा, शोभा बढ़ाया जाएगा. वहां से जाते हैं, we move on to the book of Ezekiel. यहेजकेल के पुस्तक में हम जाते हैं, उसका 37वां अध्याय का एक वचन पढ़ते, 38वां वचन. Ezekiel chapter 37:28. जब मेरा पवित्र स्थान उनके बीच में सदा के लिए रहेगा, तब सब जातियां जान लोगे कि यहोवा इस्राएल का पवित्र करने वाला है. आमीन. ऐसे लोग, ऐसे गिरे हुए लोग, ऐसे बलहीन लोग जो गुलाम थे, ऐसे लोग कितने बार पराजित हुआ, ऐसे लोग, उसके बीच में मैं सदा सर्वदा वास करूंगा. तब उसकी शोभा इतना बढ़ जाएगा, सबको पता चलेगा इनको सिर्फ परमेश्वरी पवित्र कर सकता है. Such people, famished, enslaved, defeated over and over again, when I choose to live among them and reign among them as their king, they will be so glorified. The world will stand up and acknowledge that only the Lord God Jehovah could sanctify such a people. പരാജയപ്പെട്ട, അടിമകളാക്കപ്പെട്ട, ദരിദ്രരായി തീരുന്ന ഒരു ജനം അവരുടെ മധ്യേ ഞാൻ വസിപ്പാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ, അവരുടെ മധ്യേ ഞാൻ എന്റെ കൂടാരമടിക്കുമ്പോൾ, എന്റെ ഭവനമാക്കി തീർക്കുമ്പോൾ, അവരെ ഞാൻ മധ്യത്തിൽ രാജ്യത്വം നടത്തുമ്പോൾ, വാഴുമ്പോൾ, ലോകം ഒരുപോലെ പറയും, ഇങ്ങനെ ഒരു ജനത്തെ വിശുദ്ധീകരിപ്പാൽ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവത്തിനല്ലാതെ മറ്റാർക്കും കഴിയുകയില്ല. इसको मनुष्य को देखकर लोग कहेंगे इसको सिर्फ प्रभु ही ठीक कर सकता, इसको सिर्फ प्रभु भी पवित्र कर सकता. मेरा बोल, look at the wicked man's transformation and acknowledge, giving glory to God. Only God in heaven could have transformed this man, could have sanctified this man. वहां से आगे बढ़ता है, मैं बहुत दूर जाना है. हम अब दानियल के पुस्तक में आकर 2-3 वचन पढ़ेंगे. दानियल का पुस्तक पहले 3 अध्याय के 26 पढ़ते हैं. Daniel chapter 3 26th verse पढ़ते हैं. नबूकदनेस्सर उस धधकते हुए भट्टे के द्वार के पास आकर कहने लगा, हे शद्रक, मेशक और अबेदनेगो, हे परम प्रधान परमेश्वर के दासो, निकल कर यहां आए. आमेन. The king Nebuchadnezzar is calling Shadrach, Meshach and Abednego, come out, servants of the Most High God. हमें बाबिलोन का राजा कहेगा, तुम परमेश्वर के अधिश्रेष्ठ दास है. एशिया भविष्यद्वक्ता का मुंह से प्रभु ने व्यर्थ में ये बात नहीं सुनवाया. That is why heaven roared to the mouth of Isaiah the prophet, that we may hear and heed too. Amen. You are honored. You are precious to me, says heaven, which will be known, understood and acknowledged by King Nebuchadnezzar. Amen.
स्वर्ग ने इसलिए ये बात को सुनाया, तू मेरे लिए प्रतिष्ठित पुरुष है, तू मेरी दृष्टि में अनमोल है। आमीन। अब नेबूकदनेस्सर राजा कहता, उनको बुलाकर नाम लेकर पुकार कर कहता है, परम प्रधान परमेश्वर के दासो निकल कर आ। आमीन। वहां से आगे बढ़ता 5वें अध्याय का 11 पढ़ता है, much will happen. It's an eventful journey. Amen. It's a glory journey. Amen. हम 5वें का 11 वचन पढ़ते हैं 5वें से। तेरे राज्य में दानियेल नामक एक पुरुष है जिसका नाम तेरे पिता ने बेलशस्सर रखा था। उसमें पवित्र ईश्वरों की आत्मा रहती है और इस राजा के दिनों में उसमें प्रकाश प्रवीणता और ईश्वरों के तुल्य बुद्धि पाई है। आमीन। अभी देखो बेलशस्सर राजा उसको कहते हैं, ओ किंग लिव फॉरएवर। There is a man in your kingdom in whom is the spirit of the holy gods. Amen. बाबिलोन के जन कहे, राजा के कर्मचारी कहे, मंत्री जन कहे, amen. There is a man here, amen. He is a wonder man, amen. एक अद्भुतवान व्यक्ति है, एक चमत्कारिक गवाह है यहाँ। वो चिन्ह और चमत्कार बनकर यहाँ ठहरा है, परमेश्वर की ओर से नियुक्त किया गया है, amen. उसमें प्रकाशन है, प्रवीणता है, ईश्वरों की तुल्य बुद्धि है उसमें। Amen. Amen. He had such understanding. He gets such revelation. And he has wisdom like that of the gods. Amen. Amen. जाना जाएगा, चिन्ह और चमत्कार करके रहोगे। Amen. You will not remain hidden anymore. छिपी हुई नहीं रहेगा, നീ മറഞ്ഞിരിക്കുകയില്ല, നീ വെളിപ്പെട്ടു വരും। Amen. സ്വർഗീയ ജ്ഞാനം, സ്വർഗീയ അറിവ്, സ്വർഗീയ വെളിപ്പാട് നിന്നിലുള്ളത് ലോകം അംഗീകരിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം രാജാക്കന്മാർ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കും, രാജാക്കന്മാരുടെ മന്ത്രിമാർ അവന് മുൻപാകെ സാക്ഷ്യം പറയും, ഇവർ അത്ഭുത സാക്ഷികളത്രേ। ये चमत्कारी गवाह लोग हैं, ये अद्भुत और चिन्ह है। आमीन। वहां से बढ़ता 6वें अध्याय में जाकर 25 से पढ़ता। We move on to 6th chapter of Daniel and look into verses from 25 से पढ़ता है। राजा दारा ने सारी सृष्टि के रहने वाले देश देश के जाति जाति के सब लोगों को और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले के पास यह लिखा, तुम्हारा बहुत कुशल हो। मैं यह आज्ञा देता हूं कि जहां जहां मेरे राज्य का अधिकार है वहां के लोग दानियेल के परमेश्वर के सम्मुख कांपते और थरथराते रहे। आमीन। King Darius is writing to all the nations. His subjects spread over the world. Now it is Darius. It's not Nebuchadnezzar. It's not Belshazzar. It's not Darius. Amen. From glory to glory, it passes on. Amen. ये ज्वाला बुझेगी नहीं. This torch will not be put out. Amen. It will keep on blazing and blazing. Continue to witness. It will continue to witness. It will continue to become eloquent and eloquent. Amen. वो ज्यादा ज्यादा प्रचार करते जाएगा और कहते हैं कि दानियेल का परमेश्वर के सामने थरथराना है. अभी परमेश्वर जाना जाएगा. वो दानियेल का परमेश्वर है. Amen. The Gentiles will acclaim. They will acknowledge that the living God is that of Daniel. Daniel എന്റെ ദൈവമെന്ന് അവൻ അറിയപ്പെടും ജാതികളുടെ മധ്യേ. അവന്റെ മുൻപിൽ ലോകം മുഴുവനും വിറയ്ക്കണമെന്ന് ദാരിയസ് രാജാവ് കൽപ്പന പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു. वही जीवता और युगानुयुग तक रहने वाला परमेश्वर है. He is the God who liveth forever, endureth forever. Amen. His kingdom shall never be destroyed. His dominion shall never come to an end. वो कहते उसका राज्य अविनाशी है, अमिट है. उसकी प्रभुता सदा के लिए स्थिर रहेगी. जिसने दानियेल को सिंहों से बचाया है वही बचाने और छुड़ाने वाला है. As he delivered Daniel from the mouth of the lions, he delivers and rescues. He works signs and wonders. Amen. वो ईसा भी चिन्ह और चमत्कार करता है. इसके लिए उसके गवाह लोग चिन्ह और चमत्कार बनकर रहे. Amen. Amen. He still continues to work signs and wonders in heaven and on earth. Amen. सिर्फ स्वर्ग में नहीं, सियोन में. Amen. स्वर्गदूतों के द्वारा नहीं, सियोन कुमारियों के द्वारा.
Not only in heaven, but on earth. Amen. His mighty hands will do such mighty deeds of signs and wonders. Amen. Not through only angels of heaven, but through the saints chosen here. Amen. Through the daughters of Zion. सियोन कुंवारी की ओर से भी ऐसा चिन्ह चमत्कार यहाँ किया जाएगा. सिर्फ स्वर्ग में नहीं है. Amen. ദാനിയേലിന്റെ ദൈവം അത്ഭുതങ്ങളുടെ ദൈവം അത്രേ. Amen. അവൻ അടയാളങ്ങളും അത്ഭുതങ്ങളും സ്വർഗത്തിലും ഭൂമിയിലും ചെയ്യും. സ്വർഗദൂതന്മാർ നിമിത്തം മാത്രമല്ല അവൻ ചെയ്യുന്നത്. അവനെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട സിയോൻ കുമാരികളുടെ കരങ്ങളാൽ അതുപോലുള്ള അത്ഭുതങ്ങളും അടയാളങ്ങളും നടക്കും. ലോകം കണ്ട് വണങ്ങട്ടെ, ലോകർ ഭ്രമിക്കട്ടെ, സാക്ഷികൾ എഴുന്നേൽക്കട്ടെ ഈ അത്ഭുത സാക്ഷികളുടെ മുൻപിൽ. Amen. Amen. हम आगे बढ़कर हम ओबद्याह के पुस्तक में जाते हैं. ओबद्याह को हम कभी कभी भूल जाता एक अध्याय होने के कारण. We move on to prophet Obadiah. एक अध्याय है, उसके 21 वचन पढ़ते हैं. उद्धार करने वाला एसाव के पहाड़ के न्याय करने के लिए सियोन पर्वत पर चढ़ाएंगे. राज यहोवा ही का ही हो जाएगा. आमेन. उद्धार करने वाला सियोन से ये सारी चीज हो जाएगा. एसाव के पहाड़ का न्याय किया जाएगा. हालेलुया. हमने देखा वचन में सियोन के मंडप से न्याय किया जाता है. Saviors will go up to Mount Zion to rule Mount of Esau. Amen. They will rule and they will execute the judgment. The kingdom of the Lord shall be forever. परमेश्वर यहोवा की ये राज्य बने रहेगा. हालेलुया. ये राज्य की स्थापना के लिए, मार्ग बनाने के लिए ये गवाहों को प्रभु ने निकलवाया है. These witnesses, these wondrous witnesses, these miracle witnesses of God are going forth to prepare the way for the kingdom of God to be established on earth. Amen. यहाँ वो लोग ऐसे मार्ग बनाएंगे कि परमेश्वर का राज्य आए और यहाँ स्थिरता से बने रहे. हम हग्गाई में जाता. हग्गाई पहले अध्याय का 8वां वचन पढ़ते. पहाड़ पर चढ़ जा, लकड़ी ले आ और इस भवन को बना और मैं उसको देखकर प्रसन्न होऊंगा और मेरी महिमा होगी. यहोवा के यही वचन है. हालेलुया. बारी को देखकर वो प्रसन्न होता है. परमेश्वर के भवन को देखकर वो प्रसन्न होता है. वहां से आज्ञा देता और हम आगे बढ़ने को कहता. प्रभु कहता बनाते जाना. हालेलुया. Continue to build. You are as well co-builders. You are not just warriors. यहाँ बहुत कुछ होएगा. Simultaneously, many events will take place. Amen. You will keep on building as well as you advance in the battle. Amen. लड़ाई में आगे बढ़ते बढ़ते बांध काम भी हो जाएगा. बनाते जाओ ताकि मैं अधिक महिमा पाऊं. Amen. परमेश्वर अधिक महिमा पाना चाहता. इसलिए हम पढ़ता उसमें go up to the hills, bring wood, build the house, expand it, that I will take pleasure. Amen. Witnessing it, beholding it, that I may be glorified in it and through it. Amen. मैं देखकर प्रसन्न हो जाऊं, खुश हो जाऊं. Amen. ഞാൻ കൂടുതൽ മഹത്വീകരിക്കപ്പെടും. ഹല്ലേലൂയ. मैं अधिक महिमा पाऊंगा. കണ്ട് സന്തോഷിക്കുക മാത്രമല്ല ദൈവനാമം അധികം അധികം മഹത്വപ്പെടേണ്ടതിന് നിങ്ങൾ യുദ്ധം ചെയ്ത് മുന്നേറുമ്പോഴും നിങ്ങളുടെ കരം പണിതുകൊണ്ടിരിക്കും. അമേൻ. നെഹമ്യാ के पुस्तक से हम ये पढ़ते हैं. अमेन. आधा जन लड़ने के लिए तैयार, आधा जन कार्य करता है. अमेन. When the soldiers at war, the builders build. Amen. Amen. Nehemiah had taught this. उसने हमें यह सिखाया. वहां से बढ़कर जकरिया के पास जाता. We move on to सिकराया. सिकराया का पुस्तक से 2-3 वचन हमें पढ़ना है. अब 8 का 23 पढ़ता. 8 chapter 23. सेनाओं के यहोवा यो कहता है, उन दिनों में बांदी बांदी की भाषा बोलने वाली सब जातियों में से 10 मनुष्य एक यहूदी पुरुष के वस्त्र की चोर को एक कर पकड़ लेंगे
हम तुम्हारे संग चलेंगे क्योंकि हमने सुना है कि परमेश्वर तुम्हारे साथ है. There is a shout of a king in their midst so that Gentiles will come. Nations will come. Amen. Acknowledging the glory and the anointing on the people of God. परमेश्वर के जन जब आगे बढ़ते हैं दुनिया के लोग आएंगे, कबूल करेंगे. हमें वे लोग ये देखेंगे परमेश्वर की महिमा का दर्शक बनेंगे, परमेश्वर का अभिषेक को पहचानेंगे. നിങ്ങൾ മുന്നേറുമ്പോൾ ജാതികൾ വരൂ. ലോകത്തിലെ ജനങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചു കൊണ്ടുവരൂ. അവർ നിങ്ങളുടെ മഹത്വത്തെ കാണൂ, നിന്റെ മേലുള്ള അഭിഷേകത്തെ തിരിച്ചറിയും. आमेन. वो कहेंगे हम तुम्हारे संग चलेंगे, तुम्हारे वस्त्र को छुएंगे. हमें जैसे वो स्त्री जो खून के बीमार थी वो आई थी और यीशु के वस्त्र को छोर को छुआ था. आमेन आमेन. Just as that woman with the issue of blood will come and touch the garment of Jesus. ആമേൻ. യേശുവിന്റെ വസ്ത്രത്തിന്റെ അറ്റത്തെ തൊടുവാൻ ആ രക്തസ്രാവക്കാരി സ്ത്രീ കയറി വന്നതുപോലെ അനേകർ അഭിഷിക്തന്മാരെ കണ്ടിട്ട് ദൈവജനത്തിന്റെ മേലുള്ളവന്റെ മഹത്വത്തെ കണ്ടിട്ട് വസ്ത്രം തൊടുവാൻ കയറി വരൂ. ഈ വസ്ത്രത്തെ അവർ തിരിച്ചറിയോ. Even as you had one decked up with the glory of God, परमेश्वर की महिमा धारण करके हम चलेंगे. वस्त्र छूने के लिए लोग आएंगे. ऐसे हम वहां से पढ़ते हैं, वहां से आगे बढ़ता है. 10 का 11 पढ़ता है. जकरिया चैप्टर 10 11th वर्स. जकरिया 10 का 11. वो उस कष्टदायी समुद्र में से होकर उसकी लहरें दबाता हुआ जाएगा. नील नदी का सब गहरा जल सूख जाएगा. अशूर का घमंड तोड़ जाएगा और मिस्र का राजदंड जाता रहेगा. He shall pass through the sea of trouble. Indeed, we will pass through it, and we will be more than conquerors. Amen. वो ऐसे कष्टदायी समुद्र से होकर चलेंगे. ऐसे लहरें होंगे, लेकिन लहरों को दबाकर वे आगे बढ़ेंगे. Amen. As Jesus would walk, and as Peter would follow, over the roaring below shall they proceed. Amen. गर्जने वाली लहरों के ऊपर से वो आएंगे. Amen. नील नदी की गहराई से वो लोग नहीं डरेंगे. Amen. Amen. They will defy the depths of Nile, which shall be eventually dried up. Amen. Amen. അവർ കടന്നു വരും. കഷ്ടത്തിന്റെ സമുദ്രത്തിൽ കൂടെ അവർ കടന്നു വരും. അലറുന്ന തിരമാലകളുടെ മുകളിൽ കൂടെ യേശു നടന്നതുപോലെയോ അവരെ പിൻഗമിച്ച പത്രോസ് നടന്നതുപോലെയോ അവർ നടക്കും. ആമേൻ ആമേൻ ആമേൻ. നൈൽ നദി അവരെ ഭ്രമിപ്പിക്കുകയില്ല, അതിന്റെ ആഴങ്ങൾ അവരെ ഭയപ്പെടുത്തുകയില്ല. അത് ഉണങ്ങിപ്പോകും. അവരുടെ കാഴ്ച വിട്ടുമ്പോൾ അവനെ ദേഖാ नील नदी सूख जाएगी. कष्ट के समुद्र को हम पार करेंगे. गर्जने वाले लहरों को ऊपर से यीशु के समान उसके पीछे पत्रस चला वैसे हम चलेंगे. अमेन अमेन. ये कैसे होगा? वो लिखा यहोवा द्वारा वो पराक्रमी करूंगा मैं और उसके नाम से चले फिरेंगे. वो कहता है I will make them strong in the Lord. It is for me to strengthen them. मैं उसको बल देता रहूंगा, इसलिए वो आगे बढ़ते रहेंगे और उनके नाम में, मेरे नाम में वे चलेंगे. आमेन. उसके नाम में वे चलेंगे. यहोवा की ये वाणी है. They will go in my name. They will walk in my name. Amen. Receiving strength upon strength. वहां से आगे बढ़ता है. So we know it's a happening procession. It's an eventful procession. Hallelujah. यहाँ बहुत कुछ होएंगे. चुपचाप चलने वाली बात नहीं है. आमेन. मुंह बंद कर चलने वाली बात नहीं है. लोग सोते वक्त आगे बढ़ने वाली बात नहीं है. आमेन आमेन. ശബ്ദമുഖരിതമായ ഒരു യാത്രയത്രേ. ലോകം തിരിച്ചറിയുന്ന ഒരു യാത്രയത്രയത്. ലോകം വല്ലഭത്വം ഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു യാത്രയത്രയത്. आमेन. 12 का 3 वचन पढ़ते हैं, फिर जकरिया को छोड़ देंगे. हम Zechariah again chapter 12 verse 3. उस समय पृथ्वी की सारी जातियां यरूशलेम के विरुद्ध इकट्ठी होगी. तब मैं उसकी इतना भारी पत्थर बनाऊंगा
कि जो उसको उठाएंगे वे बहुत ही घायल होंगे. On that day I will make Jerusalem a heavy stone for all the peoples, and who lift it will surely hurt themselves, and all the nations of the earth will gather against it. अब अंतिम समय आता है, ये यात्रा आगे बढ़ेंगे. हमें उसका अंतिम घड़ी की बात कर रहा. इसराइल के विरोध में सारे दुनिया के सेना खड़े हो जाएंगे. मैं लड़ूंगा इसराइल के लिए, इस परमेश्वर के. कलीसिया दौड़ पूरा करेंगे. हमारे Church of God will take the wings of eagle and fly away. परमेश्वर की कलीसिया उकाब के पंखों पे उठेंगे. സ്വർഗീയ കണികളുടെ ചിറകുകൾ ധരിച്ച് ദൈവസഭ യാത്രയുടെ അന്ത്യത്തിൽ പറന്നുയരും. എന്നാൽ ഇസ്രായേൽ ജനത്തിന് വിരുദ്ധമായി ലോകം മുഴുവൻ അണിനിരക്കും. എന്നാൽ യഹോവ അരുളി ചെയ്യുന്നു, അവനെ തൊടുന്നവന് അവർ ഭാരമായി തീരും. जो उसको छूने का प्रयास करेगा उसको बहुत भारी होगा. They will hurt themselves by trying to touch Israel. कहते मैं लड़ूंगा इसराइल के लिए. आज का मेरा विषय नहीं है, इसके लिए मैं छोड़ देता. यहोवा कहता मैं लड़ूंगा. सारे दुश्मन की सेना को मैं तितर बितर कर दूंगा. मैं जीतूंगा. हमें कलीसिया को जिताने वाला इसराइल को भी जिताएगा. यीशु के नाम में आमीन आमीन. और एक वचन पढ़ते हम जुना नियम से हम आगे बढ़ते हैं. हम मलाकी भविष्यद्वक्ता का 3 अध्याय से पढ़ता है. We read from prophet Malachi chapter 3 verse 18. तब तुम फिरकर धर्मी और दुष्ट का भेद, अर्थात जो परमेश्वर की सेवा करता है और जो उसकी सेवा नहीं करता, दोनों का भेद पहचान सकोगे. बहुत बार हमने ये वचन पढ़ा है, बार हम पढ़ते रहेंगे. प्रभु कहता है फर्क दिखाई देगा. हमें you will be distinguished. People who serve will be distinguishable. Amen. ये फर्क दिखाई देगा. There will be a distinction between the righteous and the wicked. Meaning, between the ones who serve me and the ones who do not serve me. परमेश्वर की सेवा करने वाले और नहीं सेवा करने वाले, परमेश्वर का भय मानने वाले और नहीं भय मानने वाले के बीच में फर्क जरूर होगा. ये प्रकट होगी दुनिया के सामने. There will be a clear distinction. ദൈവത്തെ സേവിക്കുന്നവനും സേവിക്കാത്തവനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ലോകത്തിന്റെ മുൻപിൽ വെളിപ്പെടും. തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ജനത്തിന്റെയും അവരെതിരായി നിൽക്കുന്ന ലോകരാഷ്ട്രങ്ങളുടെയും മുൻപിൽ അത് വെളിപ്പെടും. ദൈവസഭയെ ഉപദ്രവിച്ചവരുടെ മുൻപിൽ, ദൈവസഭയെ വിശുദ്ധീകരിക്കുന്നവരവരുടെ മധ്യം ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് അവർ ഗ്രഹിക്കത്തക്കവണ്ണം ഈ വ്യത്യാസം വെളിപ്പെടും. ये फर्क दिखाई देगा. Hallelujah. Between the church of God and the persecutors, between the nation of Israel and all their enemies, ये फर्क दिखाई देगा. हम आगे बढ़ते हैं. हम अब नया नियम में नजर डालते हैं. हम मत्ती से हम शुरू करते हैं. मत्ती का 3 अध्याय से हम पढ़ते हैं. मैथ्यू चैप्टर 3 verse 17 का 17 वचन पढ़ते हैं. देखो यह आकाशवाणी हुई, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं. अब यह आकाशवाणी गवाही स्वर्ग से सुनाई दे रहा है. एक अद्भुतवान पुरुष स्वर्ग से भेज दिया गया है. The wonderful has descended onto the earth. Amen. पुत्र को भेज दिया है. सेवकाई शुरू करने पर है. Amen. The son is just about to set out on the mission now. तो स्वर्ग से आकाशवाणी हो रहा है, मेरे ओर से भेज दिया गया है.
As the witness of heaven advances, there will be witness from heaven. Amen. स्वर्ग की साक्षी, स्वर्ग से भेज दिया गया गवाह आगे बढ़ते तो स्वर्ग से गवाही दी जा रही है। ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। अमेन। शुरुआत हो रहा है कलीसिया की जो जीत की यात्रा है शुरू हो रहा है। The victory procession of the church of God is beginning now. Amen. We have been strengthened by all that we had seen in the Old Testament about this mighty procession of the Lord's people. अमेन। परमेश्वर के जन के ये महान यात्रा के विषय में हम पिछले अनेक अध्याय में से ये बात को देखा। अमेन। ये कैसे आगे बढ़ते हैं ये देखकर हम आए हैं। अमेन। एक साधारण एक शोभा यात्रा नहीं है, ये ऐसे जुलूस है। अमेन। जय पाने के लिए ऐसे जुलूस है। ये महिमामय शोभा यात्रा है। This is a glory walk. Amen. ഇത് മഹത്വം വിളങ്ങുന്ന യാത്രയത്രേ. അതുകൊണ്ടത്രേ സ്വർഗം അട്ടഹസിച്ചുകൊണ്ട് പറയുന്നത് ആ യാത്രയെ നയിക്കുന്നവനെ കുറിച്ചത്രേ ഇത് പറയുന്നത്. Amen. The captain of our salvation is going ahead and there is a witness coming from heaven. This is my beloved son whom I am well pleased. Amen. आरंभ सही है, well begun, more than half is done. आमेन आमेन। हमें अच्छी रीति से शुरुआत है। आमेन। बहुत कुछ हो गया अब। आमेन। Begin well. This is going to be a really eventful procession. बहुत कुछ होने पर है हमें पता चलता सही आरंभ है इसलिए है। उसका 9 अध्याय से भी एक वचन पढ़ते हैं। We look into chapter 9. Chapter 9 का 8वां वचन। लोग ये देखकर डर गए और परमेश्वर की महिमा करने लगे जिसने मनुष्यों को ऐसा धिक्कार दिया। People were afraid and they gave glory to God who had given such authority to man. यीशु ने आरंभ किया, अभी घटनाएं घटने लगी। Events after events will be unfolded. Amen. प्रभु कार्य करना शुरू किया। लोग विस्मय से कहता, man, they were so amazed. Some would get so startled as to acclaim, what a God, what a mighty God. They will glorify. इसलिए परमेश्वर ने कहा, मैं महिमा पाऊंगा, मैं महिमा पाऊंगा। हमें परमेश्वर के पुत्र ने यह कार्य किया, पापों की क्षमा किया। अद्भुत से कहते मनुष्यों को ऐसा अधिकार। आमेन। परमेश्वर का पुत्र मनुष्य बनकर आया है। आमेन। मनुष्य को ऐसा अधिकार देने वाला परमेश्वर है। चिन्ह चमत्कार सिर्फ स्वर्ग में नहीं, स्वर्गदूतों से द्वारा नहीं, स्वर्ग से भेज दिया जाने वाला मनुष्य के हाथ से भी होगी। Signs and wonders will not be just wrought in heaven or to the hands of the angels of God, but rather to the hands of the man who is sent forth at the counsel and the command of God of heaven. Amen. സ്വർഗദൂതന്മാരുടെ കരങ്ങളാൽ മാത്രമല്ല അടയാളങ്ങളും അത്ഭുതങ്ങളും നടക്കുന്നത്, സ്വർഗത്തിൽ മാത്രമല്ല നടക്കുന്നത്, ഈ ഭൂമിയിൽ സ്വർഗത്താൽ അയക്കപ്പെട്ട മനുഷ്യല്ല, സ്വർഗത്തിന്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് വന്നവല്ല, സ്വർഗത്തിലെ സാക്ഷ്യം പ്രാപിച്ചവല്ല, അവൻ അതുപോലെ മനുഷ്യനായി ഇത്ര വലിയ അത്ഭുതങ്ങളെ ചെയ്യുവാൻ സ്വർഗത്താൽ അധികാരം പ്രാപിക്കും। आगे बढ़ता है, मरकुस के सुसमाचार में जाना है। मरकुस पहले अध्याय से 7-8 पढ़ता, वो ये प्रचार करता था, मेरे बाद वो आने वाला है जो मुझसे शक्तिमान है, मैं इस योग्य नहीं कि झुक कर उसके जूतों का बंद खोलूं। हालेलुया। मैंने तो तुमको जल से बपतिस्मा दिया, पर वो तुझे पवित्र आत्मा से बपतिस्मा। दिस इज दैट वॉइस crying out from the wilderness, कहते there is someone coming after me, mightier than me। बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना कहते मेरे पीछे कोई आ रहा है। यही वो शब्द रेगिस्तान से चिल्लाने वाला शब्द भी सुनाई दे रहा है।
He will not remain silent. The sent one can never keep his mouth shut. वो चिल्ला चिल्ला कर दुनिया को सुनाता है, मेरे पीछे कोई आ रहा है, वो मुझसे सामर्थी है, शक्तिशाली है. ആമേൻ. അയക്കപ്പെട്ടവന്റെ വായ അടഞ്ഞിരിക്കുകയില്ല. ഇതത്ര മരുഭൂമി, ഇത് അലറുന്ന ശബ്ദം. അവൻ പറയുന്നു, ആമേൻ, എന്റെ പിറകെ ഒരുത്തൻ വരുന്നുണ്ട്, അവൻ എന്നേക്കാൾ ശക്തനത്രേ, മല്ലനത്രേ, ഞാൻ ജലത്തിൽ സ്നാനം കഴിപ്പിക്കുന്നവനത്രേ, എന്നാൽ അവനോ പരിശുദ്ധാത്മാവാൽ സ്നാനം കഴിപ്പിക്കുന്നവനാണ്. ഹല്ലേലൂയ. वहां से आगे बढ़ता है, वहां से बढ़कर लूका में चले जाते हैं. So in Luke chapter 3 15 से पढ़ते हैं. लूका का सुसमाचार 3 अध्याय 15 से. जब लोग आस लगाए हुए थे और सब अपने अपने मन में यूहन्ना के विषय में विचार कर रहे थे कि क्या यही मसीह तो नहीं है, तो यूहन्ना ने उस सबसे कहा, मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूं, परंतु आने वाला है जो मुझसे शक्तिमान है, मैं तो इस योग्य भी नहीं कि उसके जूतों का बंद खोल सकूं. वो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा. Luke is describing the same thing, but यहां यूहन्ना कहता है कि मैं मसीहा नहीं हूं. Amen. The glory was such, the people had almost mistaken him to be the Messiah. Amen. അയക്കപ്പെട്ടവൻ അങ്ങനെ അത്രേ, അവനാണോ മശിഹ എന്ന് പോലും ലോകം ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങി, സംശയിക്കാൻ തുടങ്ങി. അപ്പോൾ അവൻ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു, കുനിഞ്ഞ് എന്റെ പിറകെ വരുന്നവന് ചെരുപ്പ് വാരഴിപ്പാൻ ഞാൻ യോഗ്യനല്ല. Amen. As we go, we will be blazing like this lamp that John the Baptist was. ദൈവസഭയെ നാം മുന്നേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ കത്തിജ്വലിക്കുന്ന ദീപമായിരുന്ന യോഹന്നാൻ സ്നാപകനെ പോലെ നമ്മുടെ വെളിച്ചം ലോകത്തിൽ പ്രകാശിക്കും. പത്രോസ് യേശുവിനോട് കൂടെയുള്ളവരെന്ന് ലോകം തിരിച്ചറിഞ്ഞു. യോഹന്നാൻ സ്നാപകൻ തന്നെ മശിഹയാണെന്ന് അവർ ചിന്തിപ്പാൻ തുടങ്ങി. लोगों को लगने लगा यही मसीहा है. आगे बढ़ते तो प्रज्वलित होकर जलने वाली दिया जैसा यूहन्ना था, वैसे हम भी बन जाएंगे. हालेलुया. हम वैसे आगे बढ़ते हैं. हम लूका का 5 अध्याय से भी पढ़ते हैं, 5 का 26 पढ़ते हैं. चैप्टर 5:26 ऑफ लूक. तब सब चकित हुए और परमेश्वर की बड़ाई करने लगे और बहुत डर कर कहने लगा, आज हमने अनोखी बातें देखी. The scene how Jesus had forgiven and caused the paralyzed to walk, picking up his cot. Man, उन्होंने देखा कैसे यीशु ने पापों की क्षमा किया और जो लोगों के बीमार को आज्ञा देकर उसका काट उठवाया और चलने पर लगाया. देखकर वो कहते, आज हमने अनोखी बातें देखी है. We have seen extraordinary things today. There will be seen extraordinary things by the world. Amen. Wondrous things, unbelievable, supernatural, incredible events will take place as this ministry advances. परमेश्वर के पुत्र के सेवकाई आगे बढ़ रहा है. वो लोग ऐसे अनदेखी बातें, अनोखी बातें, अलौकिक बातें देखा है. आमीन. सेवकाई आगे बढ़ेगी तो दुनिया देखेंगे, अलौकिक बात देखेंगे, अद्भुत बात देखेंगे. क्या होने वाली घटना को छोड़ो, हम चिन्ह और चमत्कार बनकर रहेंगे. मेरे संतान चिन्ह और चमत्कार बनकर रहेंगे. अबे they will be so distinguishable, so distinct, shining like stars in a darkened world. हम और हमारे संतान ऐसे चमकने वाले तारे समान ये अंधकार
से भरी दुनिया में चिन्ह और चमत्कार बने रहेंगे। ये दुनिया के संतान के समान नहीं रहेंगे। हमें इतना हट कर चलेंगे, दुनिया के रीति को त्यागेंगे, दुनिया के सामने चिन्ह और चमत्कार बने रहेंगे। We and our children will be signs and wonders in this world, in a vicious world like this, in a wicked world like this, in a darkened world like this. अंधकार से भरी हुई है दुनिया में। हालेलुया। कुटिलता जब वहां चलते हैं वहां हालेलुया अनोखी बातें देखेंगे, अद्भुतवान बातें दिखाई देगा। हम आगे बढ़ते हैं, उसके बाद हमें उसका 14 अध्याय में जाना। We move on to the 14th chapter of Luke itself and read 23वां वचन, 23rd। स्वामी ने दास से कहा, सड़कों पर और बाड़ों की ओर जा और लोगों को विवश करके ले जा, ताकि मेरा घर भर जाए। क्योंकि मैं तुझसे कहता हूं दो आमंत्रित लोग हैं, वो मेरे बोझ के योग्य नहीं है, वे लोग चखेंगे। यू नो दिस पैराबल, हमें ये उपमा मालूम है अच्छी तरह। बुलाए गए लोग, आमंत्रित लोग हैं, मौका खो दिया है। लेकिन अद्भुत की बात यह है, हालेलुया, ऐसे लोग, बेकार लोग, नम्र लोग, अब तक परमेश्वर को नहीं जानता, परमेश्वर की महिमा को नहीं चख लिया, राजा को नहीं जानता, राजा के पास नहीं आ सकता, योग्य नहीं है, बिल्कुल योग्य। वहां लिखा है उसको निर्बंध पूर्व लेकर आना, विवश करके लेकर आना। उनमें जानकारी नहीं है। Amen. They never had an opportunity to hear about God, not to know the scriptures. Amen. उसको लेकर आओ तो ऐसे कार्य करोगे। Amen. As you move along, pull them off from along the way। राह से ऐसे लोगों की इकट्ठा करो, हाथ बढ़ा के चलो। अमें हाथ बढ़ा के चलो, लोगों को सहारा दे, ऐसे लोग आने दे। उस बात कहना है, समय नहीं है। आमंत्रित लोग, चुने हुए लोग हैं, पूरा हक उसका था, लेकिन राजा उसको भी निर्बंधित कर लेकर आ सकता था। If he had wanted, the king would have sent his soldiers to force all those invited people, those aristocrats, those elite. Amen. राजा अगर चाहता तो निर्बंध पूर्व उसको क्यों नहीं लेकर आ सकता था? राजा नहीं करेंगे। राजा नम्र लोगों को चुन लेने वाले हैं। अवसर बहुत दिया था, 1 साल से अधिक समय था तैयारी के लिए, लेकिन हंगारी लोग एक बहाना बताते हैं। They are in the business of inventing एक excuse, one excuses. Amen. They had plenty of time to get ready. Amen. Amen. Now the king has no mind to bring them under force, to force them to come. He could have easily done it. He will not. He would rather gather the lame and the weak who had never had a chance to know about the king or ever dream of showing themselves up to the king. राजा के सम्मुख लेकर आने के लिए उन्होंने कभी अपने आप को योग्य नहीं माना था, और पार लौट जाएगी। लेकिन ऐसे लोग इकट्ठा किया जाएगा। हमें कहीं नष्ट करेगा, ऐसा नष्ट करेगा, ना नष्ट करेगा। Cain might forfeit it, Esau might forfeit it, man, Orpah would forfeit it, Nabal will forfeit it, but many humble and the unfortunate ones, the marginalized one, they will be gathered. ये कलीसिया का काम है। जो महान लोग पीछे हटता है, जो लोग अपने आप को बड़े भक्त और महान समझते थे, वे पीछे हटेंगे। लेकिन हम ऐसे लोगों को जोड़ देंगे, ऐसी पक्षियां हम आएंगे, सुरक्षित बने रहेंगे। We keep on gathering such people. As this procession advances, many weaklings will be helped. Amen. Those who have never known the Lord,
They will come to know him. They will be dragged to the presence of the king. राजा के सम्मुख उसको हम खींच लाएंगे। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर को नहीं जानता। आमीन। परमेश्वर के पास आने के लिए योग्य भी नहीं जानता। They are not the self-justifying people. They are not the self-righteous people. They are not the proud people. The humble people. Amen. वे लोग लाया जाएगा। ये यात्रा का एक लक्ष्य हो गया है। This is a glorious purpose of this procession. A church advances. This will happen. This will happen. हम उसका लूका में ही है, उसका 14 अध्याय से we have to move on to now 24th chapter. 24वें अध्याय में जाते हैं, 27 पढ़ते हैं कि 24th chapter 27th verse. तब उसने मूसा से और सब भविष्यद्वक्ताओं के आरंभ करके सारे पवित्र शास्त्र में से अपने विषय में लिखी बातों का अर्थ उन्हें समझा दिया। Hallelujah. God's word will be revealed to us. We will keep on receiving a revelation of the word of God. अब ये लोग तैयार किया जा रहा है, हम जानते हैं इन लोगों को। ये लोग आधी रात को रोटी तोड़ने के बाद उड़कर यरूशलेम की ओर जाएंगे और बाकी चेले लोगों को मजबूत करेंगे, दृढ़ कर लेंगे, गवाह बनकर जाएंगे। They will be the wondrous witnesses of the resurrection of the blessed Lord, having been given instruction on the word of God by Jesus himself. Hallelujah. यीशु के द्वारा शिक्षा पाकर, पवित्र शास्त्र से उपदेश पाकर, आमीन, पवित्र शास्त्र का प्रकाशन पाकर, जब परमेश्वर के ऐसे दास लोग, परमेश्वर के चेले लोग भयचकित होकर कमरे में अपने आप को बंद कर रखा है, ये लोग आधी रात को भी निडर, आमीन, गवाह बनकर, ऐसे चमत्कारिक गवाह बनकर, परमेश्वर के पुत्र के उद्धार का गवाह बनकर, the mighty witnesses, amen, the bold witnesses of the resurrection of Jesus. Amen. Undaunted, they will go back to Jerusalem to encourage and strengthen the cowards that the other disciples were. Amen. वो लोग जाएंगे अर्धरात्रिയിൽ ഭയപ്പെടാതെ അവർ തിരിഞ്ഞ് യെരൂശലേമിലേക്ക് നടക്കാനുള്ള ഒരേ ഒരു കാരണം അവർ ദൈവവചനത്തെ ഗ്രഹിച്ചു എന്നുള്ളതത്രേ. ദൈവവചനത്തിന്റെ വെളിപ്പാട് പ്രാപിച്ച ജനം ഭയപ്പെടാതെ മുന്നോട്ട് പോകും, അനേകരെ ധൈര്യപ്പെടുത്തും. ഭയത്തോടുകൂടെ മുറി അടച്ചിട്ടിരുന്ന അനേക ദൈവമക്കൾ ദൈവത്തിന്റെ മറ്റ് യേശുവിന്റെ മറ്റ് ശിഷ്യന്മാരെ ധൈര്യപ്പെടുത്തുവാൻ, ബലപ്പെടുത്തുവാൻ ഈ അത്ഭുത സാക്ഷികൾ കാരണമായി തീരും. അവരത്രേ അത്ഭുത സാക്ഷികൾ, യേശുവിന്റെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിന്റെ അത്ഭുത സാക്ഷികൾ അവരത്രേ. आमेन. वे लोग जाएंगे, आमेन, हियाव बांध कर जाएंगे, पवित्र शास्त्र से प्रकाशन पाएंगे। या इसके द्वारा यात्रा के लिए पालन पोषण होता, बल के ऊपर बल पाता, हिम्मत के ऊपर हिम्मत पाता, आगे बढ़ता। वो एक अध्याय से और एक वचन पढ़कर हम जाएंगे, 49वां वचन है, 49th वर्स। देखो, जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है, मैं उसको तुम पर उतारूंगा, और जब तक स्वर्ग से सामर्थ्य ना पाओ तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहो। Jesus is sending his disciples now. Amen. They have been strengthened. They have had a glorious vision of the risen Lord. वे लोग अभी हिम्मत पाया। Amen. क्लियोपास का भी गवाही सुना, यीशु बीच में आकर दर्शन दिया, स्वर्गीय दर्शन दिया। आमीन। तो कहा मैं तुझे भेजता, लेकिन ऐसे ही नहीं भेजूंगा, पवित्र आत्मा को पहले भेजूंगा। He is a sending God. We knew that. पहले इतवार को हमने पढ़ा, पिछले इतवार को हमने ये पढ़ा। आमीन। बोलता तो सामर्थ्य पाओगे, You will receive power and strength. आमीन। आगे बढ़ोगे, सामर्थ्य पाकर आगे बढ़ोगे। ये बात को हमने देखा था। और दोबारा यूहन्ना में जाता है, यूहन्ना के 3 अध्याय से ही पढ़ता, 26 से पढ़ता। लोग आकर यूहन्ना को बार बार इस पे आता, यूहन्ना में भी यही है,
लेकिन मैं यूहन्ना उनके बाद में आता है, बाकी भविष्य बाकी सुसमाचार के बाद। इसके लिए मैं इधर पढ़ता वहां पढ़ता तो अच्छा था कि लोग पूछने लगा, यूहन्ना के पास आकर उससे पूछते हैं, रब्बी, जो व्यक्ति यॉर्दान के पार तेरे साथ था, जिसकी तूने गवाही दी है, देख वो बपतिस्मा देता है, सब उसके पास जाते हैं। दे आर अलेर्टिंग जॉन द बैप्टिस्ट, देखो तूने जिसको बपतिस्मा दिया वो अभी महान बन रहा है, वो खुद बपतिस्मा दे रहा है, रुको उसको। This is a different kind of ministry. This is a ministry where the people of God, as they advance, will keep on empowering people. उसके पीछे जो आएगा उससे ज्यादा अभिषेक से काम करे। यूहन्ना कहता नहीं, वो मुझसे बलवंत है और उसके बच्चे आएंगे। सिर्फ वो नहीं, चिन्ह और चमत्कार बनने वाले उसके चेहरे हमारे पर है, उसके संतान आगे बढ़ेंगे। जॉन द बैप्टिस्ट, यू डिड वेल, यू स्पोक वेल, उन्होंने सही कहा, योगी वो है, और उसके संतान भी पीछे पीछे आएगा और वो खड़े होकर कहेगा, मैं और पिता परमेश्वर की ओर से दिया हुआ मेरे संतान। यीशु ने कहा, these are people given to me by you, O Father. And these children of mine will be signs and wonders in this perishing world. यीशु खड़ा होकर कहेगा, पिता ने मुझको इन लोगों को दिया है, उसके संतान को पिता ने दिया है। कहेंगे ये लोग मेरे साथ चिन्ह और चमत्कार बनकर जगत में रहेंगे। वहां से जाना है कि उसमें कहा था अवश्य है कि वो बड़े, मैं घटूं। हालेलुया, as his glory increases, this earthly glamour, fame, acceptance will diminish of ours. Hallelujah. जैसे हमारी ये बौद्धिक आदर सम्मान दुनियादारी ये सब घट जाएगा, परमेश्वर की महिमा अधिक प्रकट होगा। When this evil flesh of mine, when this carnal nature of mine will keep on taking the back seat, His glory will get more and more revealed in me and through me. Hallelujah. എന്നിലുള്ള ജഡമയത്വം, ലോകസ്നേഹം, ലോകമയത്വം നശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ, കുറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ, അവന്റെ മഹത്വം എന്നിൽ കൂടെയും കൂടുതൽ കൂടുതൽ പ്രകാശിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും। യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ആമേൻ, ആമേൻ। हम उसका 8वां अध्याय से भी पढ़ते हैं, उसका 8वां अध्याय से 18 पढ़ना है। चैप्टर 8 18th वर्स। एक तो मैं आप अपनी गवाही देता हूं और दूसरा पिता मेरी गवाही देता है जिसने मुझे भेजा। हालेलुया। कहता है, I myself am a sign and a wonder, but I have a greater witness from heaven. Hallelujah. मैं खुद गवाही दे सकता, मैं चिन्ह हूं, मैं चमत्कार हूं परमेश्वर की ओर से, लेकिन पिता परमेश्वर ने भी गवाही दिया है। हमने वो बात को सुना। We heard the witnessing from heaven. Man, he is my chosen one. वही यीशु ने हमारे विषय में कहा, अबे तुम हो वे चुने हुए लोग, मैन तुम मेरे गवाह हो, इसे यीशु भी कहेगा। वहां के बढ़ता 15:8 में पढ़ता कि हमने पढ़ा था कि हम पहले कई बार हमने सुना यीशु कहता तुम मेरे गवाह। हालेलुया। जैसे पिता परमेश्वर ने भविष्यद्वक्ताओं के मुंह से सुनाया, तुम मेरे गवाह हो। यीशु कहता तुम मेरे गवाह हो। आमीन। उसका 15 का 8वां वचन पढ़ते हैं, जॉन 15:8। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सफल हो, तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। मैं महिमा पाऊंगा, पिताजी महिमा पाएगा। Not only that I will be glorified, my Father in heaven will be glorified because you will be a fruit-bearing tree. Amen. This is not a barren, uneventful procession.
दिस इज अ हैपनिंग प्रोसेस। फल के ऊपर फल हम देखते आ रहे हैं, अनेक फल होगा, ये है वो फल। हमें ये जो गणनाएं घटती है, ये जो महिमा प्रकट होती है, ये महान बात सुनाया जाता है, ये जो प्रकाश से नम पाते है, वही है पवित्र आत्मा का फल। हालेलुया। फलवंत होने से पिता परमेश्वर महिमा पाएगा। We have been created for His glory. Amen. And He is fully determined that He will gain more and more glory in us and through us. Hallelujah. परमेश्वर का निर्णय है, वो महिमा पाएगा, अधिक महिमा पाएगा। उसके 26वें वचन में वैसे पढ़ता है, जब वो सहायक आएगा जिस मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा तो पिता की ओर से निकलता है, वो तेरी गवाही देगा। हालेलुया। Just as I received a witness from heaven, the witness will come down in the form of Holy Ghost. पवित्र आत्मा भेज दिया जाएगा, वो गवाही देगा। आमेन। वो तुम्हारे विषय में गवाही देगा। They will bear witness about me to you. तुम्हारे विषय में भी हम आगे बढ़कर वो सुनेंगे। जो पवित्र आत्मा मेरे विषय में गवाही देता है, वो उत्तर कराता है। He will bear witness about me. आमेन। और तुम भी मेरे गवाह हो, क्योंकि तुम आरंभ से मेरे साथ रहे हो। You will bear witness to me. You are my witnesses, wondrous witnesses. अबे तुम मेरी गवाह हो, चमत्कारी गवाह हो। यीशु कहता, आमेन। दृक साक्षी है पवित्र आत्मा। The Spirit of the Lord will be the witness. हम आगे बढ़ते हैं, उसका ही 17वां अध्याय से 21 वचन पढ़ता। 17th chapter verse 10। जो कुछ मेरा है वो सब तेरा है, और जो तेरा है वो मेरा है, और इनसे मेरी महिमा प्रकट हुई है। All mine are yours and yours are mine and I am glorified in them। नहीं कहा कि उससे मैं महिमा पाऊंगा, उसको इतना निर्णय निश्चय है, यह मेरी महिमा के कारण जरूर बन जाएंगे। हालेलुया। See his boldness and confidence in the one whom he has called and appointed and sent out। देखो कितना हिम्मत है, कितना भरोसा है उसको। कहता है इनके द्वारा मैं जरूर महिमा पाऊंगा। पिता परमेश्वर महिमा जरूर पाएगा, मैं भी महिमा पाऊंगा। भेजा नहीं है अब तक, यीशु ने अपने आप को कुर्बान भी नहीं किया अभी तक, यीशु को उद्धार नहीं हुआ अभी तक। आमेन। They are not yet sent. Jesus had not yet crucified, sacrificed himself. Man, he has not been risen from the dead. He had such confidence in the one whom he has called. जिसको पिता ने दिया है, ये मेरा पुत्र है, मेरा जन है, मैं और मेरे संतान चिन्ह और चमत्कार बने रहेंगे। आमेन। I and my children shall be wondrous witnesses। मैं और मेरे संतान, आमेन, चमत्कारी गवाह बनकर रहेंगे, चिन्ह और चमत्कार बनकर रखेंगे। वहां से आगे बढ़ता, हम प्रेरितों का कामों का पुस्तक में जाता, Acts 4:21, 4 अध्याय का 21वां वचन पढ़ता है। तब उन्होंने उनको और धमका कर छोड़ दिया, क्योंकि लोगों के कारण उन्हें दंड देने का कोई दाव नहीं मिला, इसलिए कि जो घटना हुई थी उसके कारण सब लोग परमेश्वर की बड़ाई करते थे। अभी भेज दिया गया। आमेन। पतरस और यूहन्ना हाथ बढ़ाता है। Hallelujah. And the paralyzed would stand up, held by the hand of Peter, the sent man. He is on his mission journey now. Hallelujah. वो अब ये जुसूल का भाग है, आगे बढ़ने वाली शोभा यात्रा का भाग है। वो आगे निकल,
रास्ते में हाथ बढ़ाया। मैन, जैसे राजा ने कहा जाओ रास्ते में से एक एक को खींच के लेकर आओ, पतरस करता है, पतरस ने हाथ बढ़ाया, ये लखुए को खड़ा किया। Peter would stretch forth his hand as the king had commanded, go and drag people from the streets and from the gutters if possible. ऐसे महान सेवा के लिए बुलाए हुए लोग हैं। हालेलुया। लोग विस्मित हुए, लोग इतने आश्चर्यचकित हुए। इसके लिए लोग, वहां के जो अधिकारी लोग कुछ कर नहीं पाता, इनको मारने का था लेकिन धमका कर भेज दिया। बिकॉज दे सो all the people were so impressed, they started praising God. Hallelujah. They could not even punish them. The world will stand up in acknowledgement. ലോകം മുഴുവൻ ഈ മഹത്വം കണ്ടു. രാജാവ് പറഞ്ഞു, വഴിയിൽ കിടക്കുന്നവരെ വലിച്ചുകൊണ്ട് വരുവാൻ കരം നീട്ടണമെന്ന്. പത്രോസ്, അയക്കപ്പെട്ടവനായ പത്രോസ് തന്റെ വലങ്കരം നീട്ടി പിറവിയിലെ മുഴുവനായവനെ എഴുന്നേൽപ്പിച്ചു നിർത്തി. ലോകം അമ്പരന്നു. അവർ ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുവാൻ തുടങ്ങി. അധികാരവർഗത്തിന് അവരെ ശിക്ഷിപ്പാൻ കഴിയാതെ പോയി. ഹല്ലേലൂയ. ദുനിയ ദേഖേംഗേ. Hallelujah. घटनाएं घटेगी. There will be such glorious supernatural events which the world can never ignore. Neither can they neglect. दुनिया नजरअंदाज नहीं कर सकता. ऐसे घटनाएं घटेगी, ऐसे ये जीवन रहेगा, बहुत फर्क होगा. There will be such distinction in these people, can be easily differentiated from the rest of the world. Amen. कितने अलग होंगे ये जन. इसलिए दुनिया परमेश्वर को महिमा देंगे. ऐसे वहां से पढ़ता है, वहां से वहां आगे बढ़ते हैं. वहां से हमें जाना है रोमियो में जाना. रोमियो की जो पत्रिका है उसका 8वां अध्याय से 1 वचन पढ़ते हैं, 16वां वचन. We have moved on to Romans chapter 8 to look into the 16th verse. आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं. जैसे पिता परमेश्वर ने स्वर्ग से चिल्ला चिल्ला कर कहा, जैसे पवित्र आत्मा उत्तर करा कर कहता है यीशु है, भेज दिया गया परमेश्वर का पुत्र है. आमीन. वैसे वही पवित्र आत्मा गवाही दे रहा है. आमीन. हमारी आत्मा का संग मिलकर गवाही दे रहा है कि हम परमेश्वर की संतान है, उसके गवाह है. We are such mighty, wondrous witnesses, as witnessed and seconded by none other than the Holy Ghost. പരിശുദ്ധാത്മാവ് തന്നെ സാക്ഷ്യം പറയുന്നു, നാം അവന്റെ മക്കളാണെന്ന്, നാം ദൈവത്തിന്റെ സാക്ഷികളാണെന്ന്, നാം യേശുവിന്റെ സാക്ഷികളാണെന്ന്. ആമേൻ. നാം അത്ഭുത സാക്ഷികളാണെന്ന്. ആമേൻ. അത്ഭുതങ്ങളും അടയാളങ്ങളുമാണെന്ന് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് വിളിച്ചു പറയുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. पवित्र आत्मा ही गवाही देता है. हमारी आत्मा का संग मिलकर कहते हैं, अर्थात हमारी आत्मा उसके नियंत्रण का अधीन बन चुके हैं. Amen. My spirit that remains subject to the spirit of the Lord will together in unison will shout to the world that I am a child of God. We are his witnesses. Amen. എന്റെ ആത്മാവ് അവന്റെ ആത്മാവിന്റെ കീഴിലായി തീർന്നു. ആമേൻ. പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലായി തീർന്നു. അതുകൊണ്ട് എത്ര സങ്കീർത്തനക്കാരൻ പറഞ്ഞത്, നീ വീണ്ടെടുത്ത എന്റെ ആത്മാവും എന്റെ പ്രാണനും ഒന്നിച്ച് അട്ടഹസിക്കുമെന്ന്. ഹല്ലേലൂയ. That was why the psalmist was saying, my soul that is redeemed by you and my spirit will join together when my mouth shouts, man, when my mouth sings thy glories, and when my mouth proclaims thy wondrous deeds. Amen. അതുകൊണ്ട് സങ്കീർത്തനക്കാരൻ പറഞ്ഞത്, നീ വീണ്ടെടുത്തതായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രാണനും നിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കീഴ്പ്പെട്ടിരിക്കുന്ന എന്റെ ആത്മാവും എന്റെ വാത്തുറക്കുമ്പോൾ ഒരേ സ്വരത്തിൽ ഒരേ ആത്മാവിൽ ഉച്ചത്തിൽ ഘോഷിക്കും, നിന്നെ സ്തുതിക്കും എന്നാണ്. वहां से आगे बढ़ता है
अभी दूसरी थिस्सलुनी में जाना है। कुछ सारे भाग हम कई बार पढ़ा, ये भी पढ़ा है, इसके लिए मैंने बहुत भाग को छोड़ दिया है, समय को बचाने का प्रयास है। दूसरी थिस्सलुनी में आता, पहले अध्याय से 2 वचन पढ़ता। 2 Thessalonians chapter 1 verses 10 to 12, 3 वचन। यह उस दिन होगा जब वो अपने पवित्र लोगों में महिमा पाने और सब विश्वास करने वालों में आश्चर्य का कारण होने के लिए आएगा। When he comes on that day to be glorified in his saints and to be marveled at among all who have believed, because our testimony to you was believed. Hallelujah. क्योंकि हमारी गवाही पर विश्वास किया है तुमने. Amen. Those who believe will be witnesses, and their witnessing will be heeded to and accepted and received by others, who in turn will become witnesses. Hallelujah. पौलुस कहते हमारी गवाही को तूने ग्रहण किया और तुम अपने आप को गवाह बनाया. तुम्हारे गवाह बनने वाले अनेक, गवाही बनाने वाले अनेक लोग गवाह बन जाएंगे और उनमें महिमा पाने के लिए यीशु प्रकट होएगा. आमीन. The Son of God will appear to receive glory, to be glorified in these witnesses who have made witnesses. Amen. ദൈവത്തിന്റെ സാക്ഷികളായി പുറപ്പെട്ട് അനേകരെ ശിഷ്യരാക്കി തീർത്ത, അനേകരെ സാക്ഷികളാക്കിയ, അവരാൽ അനേക സാക്ഷികൾ നിയമിക്കപ്പെട്ട ആ സാക്ഷികളാൽ മഹത്വീകരിക്കപ്പെടേണ്ടതിനത്രേ യേശുവിന്റെ മഹത്വ പ്രത്യക്ഷത. ആമേൻ. उसके लिए प्रकट होगा. पवित्र लोगों में महिमा पाने के लिए, विश्वास करने वाले में आश्चर्य का कारण बनने के लिए, to be glorified, to be wondered at, to be amazed at. आमेन. ऐसे वो आएगा उसके सिद्धों के द्वारा, उसके सेंट्स के द्वारा, उसके पवित्र जनों के द्वारा. Amen. Because of his saints, the chosen ones, the sent ones, his witnesses, he will be glorified. Amen. ऐसे वो कहता है उसके लिए वो आता, to receive glory and to be marveled at among his people. सियोन में वो प्रसिद्ध है. Amen. He is famous in Judah. He is celebrated in Zion. Now he comes to be glorified in Zion, right? To be marveled at by the Zionists and the world. इसीलिए हम सदा तुम्हारे लिए प्रार्थना भी करते हैं. मैन, हमारा परमेश्वर तुम्हें इस बुलाहट के योग्य समझे, that our God may make you worthy of his calling. This is a glorious calling. Amen. Day by day, more of it gets revealed to us. ये बुलाहट धीरे धीरे अधिक और अधिक हमारे सामने प्रकाशित किया जा रहा है. आमीन. कहते उसके योग्य तुम्हें बनाकर रखे, पीछे नहीं हटेंगे, पीछे नहीं हटेंगे, दुनियादारी को छोड़ेंगे. മണ്ണാങ്കട്ടകൾ നാം എറിഞ്ഞു കളയും. ലോകക്കാരുടെ രീതി പ്രകാരം നടക്കുകയില്ല. അതിനെന്തെല്ലാം കാരണം കണ്ടാലും ഞാനതിനെ എറിഞ്ഞു കളയാൻ പോകുകയാ. ഞാൻ യേശു കർത്താവിനെ മുറുകെ പിടിക്കുവാൻ ഞാൻ എന്നെ തന്നെ ഒഴിക്കുകയാ. I'm emptying myself that I may be filled with all of himself. I'm losing hold on the things of this world that I may grab his right hand and move ahead. Man. Amen. ഞാൻ മുന്നോട്ട് ഗമിക്കുവാൻ അവൻ നമുക്ക് ശക്തി നൽകും. आमेन. विश्वास का हर एक काम के सामर्थ्य सहित पूरा करे. आमेन. That you will fulfill every resolve for good. मेरे ये निर्णय पूरा करने के लिए वो मुझे सामर्थ्य देगा. Amen. To act as per my desire and my determination, I will be empowered and strengthened. Amen. To fulfill every resolve for good work and every work of faith by his power, so that the name of our Lord Jesus may be glorified in you. हमें परमेश्वर का पुत्र अधिक महिमा पाए. Amen. This is why we have been sent out, that his glory will get revealed to us more and more, and he will gain more and more glory because of us. Hallelujah. उसकी महिमा धीरे धीरे ज्यादा ज्यादा प्रकट किए जाए और उसकी महिमा हमारे द्वारा दुनिया के सामने प्रकाशित किए जाए. Amen.
परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह के अनुसार हमारे प्रभु यीशु मसीह का नाम तुम्हें महिमा पाए. Once again, may the name of our Lord Jesus be glorified in you more and more, and you in him. Man, ऐसा कहता है, हमारे प्रभु यीशु मसीह का नाम तुम में महिमा पाए और तुम उसमें. हमें He gets glorified in me and I am glorified in him. Man, more and more his glory gets revealed to me and I am glorified more and more. Is it not wonderful? ये अद्भुत की बात नहीं है? प्रभु मुझ में अधिक और अधिक महिमा पाते रहता और मैं उसमें अधिक और अधिक महिमामय बन जाता. അവൻ എന്നിൽ കൂടുതൽ കൂടുതൽ മഹത്വം എടുക്കുന്നു. അവന്റെ മഹത്വം കൂടുതൽ കൂടുതൽ അവൻ എനിക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി തരുമ്പോൾ ഞാൻ അവനിൽ കൂടുതൽ കൂടുതൽ മഹത്വീകരിക്കപ്പെടുന്നു. ആമേൻ. The sanctified ones will keep on getting glorified and more glorified. വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടവർ തേജസ്കരിക്കപ്പെടുന്നു, കൂടുതൽ കൂടുതൽ തേജസ്കരിക്കപ്പെടുന്നു അവന്റെ കൃപയാൽ, അവന്റെ വല്ലഭത്വത്താൽ. वहां से आगे बढ़ता हम तिमोथियोस के पहले अध्याय, दूसरे तिमोथी पहले अध्याय, 2 Timothy chapter 1, we read just one verse, 8वां वचन. इसलिए हमारे प्रभु की गवाही से और मुझसे जो उसका कैदी हो लज्जित न हो. Do not be ashamed of the testimony of our Lord. We are his witnesses. हम गवाह हैं. Hallelujah. इसके लिए प्रभु की गवाही से हम लज्जित नहीं होंगे. We will be proud of this calling. Man, we will proudly accept this testimony of God, even Jesus Christ. Amen. प्रभु की गवाही से और मुझसे जो उसकी कैदी है, मुझसे भी लज्जित नहीं होना. कष्ट के समुद्र से पार करता, आमीन, अग्नि की भट्टी में से पार करता, लेकिन लज्जित नहीं होना. आमीन. ये पराजय की यात्रा नहीं है. Don't you be disheartened. Don't you be ashamed of my chains, because we will pass through it, emerge more than victorious. Amen. Be bold. कहते लज्जित न हो. परमेश्वर की सामर्थ्य के अनुसार सुसमाचार के लिए मेरे साथ दुख उठा. ये क्लेश कर आगे बढ़ना सुसमाचार के लिए है. ये हम गवाह हैं. सुनाएंगे हम. आमीन. हम सुनाते आगे बढ़ेंगे. हम प्रचार करेंगे. We are his witnesses. Our mouths cannot be shut. We will keep on speaking. Amen. We will keep on publishing. जैसे हमने देखा परमेश्वर की वाणी स्वर्ग में सुनाई दे रहा है और यहां सियोन कुमारियां वो लेकर प्रचार करते आगे बढ़ते रहते हैं. The daughters of Zion will not keep quiet. They will continue to proclaim it. That which they had heard from heaven. स्वर्ग से उन्होंने जो सुना है उसको घोषण करते हुए वे आगे बढ़ते रहेंगे. सियोन कुमारी चुप नहीं बैठेंगे. इसलिए कहते लज्जित नहीं होना. आमीन. भयचकित नहीं होना. Don't you be intimidated. Don't you get ashamed of it. But go forth in the might and power of the Lord as mighty witnesses, as wondrous witnesses. चमत्कारी गवाह की तरह आगे बढ़ते रहना. हिया बांध कर आगे बढ़ता रहना. प्रचार करते आगे बढ़ते रहना. Let the world see and know and behold. Amen. दुनिया को देखने दे, दुनिया को सुनने दे, दुनिया आश्चर्यचकित होने दे. Let the world remain amazed at his glory. वहां आगे बढ़ता हम पहले पत्रस में जाता. We move on to 1 Peter, तीसरा अध्याय से 15-16 पढ़ता. पहला पत्रस तीसरा अध्याय 15-16. पर मसीह को प्रभु जानकर अपने अपने मन में पवित्र समझा. Amen. But in your hearts honor Christ the Lord as holy. May Christ the Lord be sanctified as our God in this temple. ये मंदिर में उसकी प्रतिष्ठा होगी. जैसे यीशु ने कहा मैं तुझको मेरे हृदय में प्रतिष्ठित किया. मैन,
Hallelujah. I have kept you in my heart as precious to me. Likewise, you keep me in your heart, sanctified in your heart. Amen. पवित्र मानकर मुझको प्रतिष्ठित करो. Let me be your Lord and God and Savior. मैं तुम्हारा परमेश्वर, तेरा प्रभु, राज करने वाला बने रहे तेरे हृदय में. आमेन. कोने का कमरा मुझे नहीं देना. Let me rule in your life. मैं राज करना चाहता हूं. इसके लिए कहते हैं यीशु को ऐसा प्रतिष्ठित करो, पवित्र समझकर प्रतिष्ठित करो, परमेश्वर समझकर प्रतिष्ठित करो. जो कोई तुमसे तुम्हारी आशा के विषय में कुछ पूछे, उसे उत्तर देने के लिए सर्वदा तैयार रहो, पर नम्रता और भय के साथ. Whosoever challenges you, amen, whosoever will raise such doubtful questions to you, you will be bold enough to speak. You will have the conviction that it takes. Amen. कहते जो कोई पूछता, ये पहले दिन भी हमने पढ़ा था, पहले भी पढ़ा था. कहते be prepared to make such a defense. Amen. To give valid reason for the hope that is in you. पीछे नहीं हटोगे, ഭയ के मारे मुंह बंद नहीं करोगे. आमेन. നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തെ കുറിച്ച് ചോദ്യമുണർത്തുന്നവരോട് പ്രാഗൽഭ്യത്തോടെ സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടി അത്രേ ദൈവവചനം അവൻ നമുക്ക് ഉപദേശിച്ചു തന്നത്. ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ യേശു കർത്താവ് ശിഷ്യന്മാർക്ക് വചനം ഗ്രഹിപ്പിച്ചു കൊടുത്തപ്പോൾ അത്രേ അവർ ജയശാലികളായി, അവർ ഭയപ്പെടാത്ത ഉത്തമ സാക്ഷികളായി യെരുശലേമിലേക്ക് തിരികെ നടന്നത്. परमेश्वर का पवित्र वचन का प्रकाशन पाओगे तो हम भी हियाव बांधकर हिम्मतवान होकर गवाही देंगे. आमेन. डरेंगे नहीं. हमारे विश्वास के विषय में हम सिखाएंगे लोगों को, संदेह नहीं करेंगे. आमेन. There won't be an element of doubt in us. We will be bold enough to defend this precious holy faith. ये अति पवित्र विश्वास को बनाकर रखने के लिए हम इसे गवाह बनकर रहेंगे. आमेन. नम्रता और भय के साथ हम करेंगे. हम चिल्लाने वाले लोग, उनके साथ झगड़ा करने वाले लोग नहीं है, लेकिन बड़े हिम्मत से हम कहेंगे, निर्णय के साथ हम कहेंगे. Amen. We won't quarrel with them, but rather we will be forceful, emphatic when we share the gospel and when we talk about our faith. हम ऐसे गवाह बनकर रहेंगे. वो कहते हैं विवेक भी शुद्ध हो, शुद्ध रखो, इसलिए कि जिन बातों के विषय में तुम्हारी बदनामी होती है, उनके विषय में वे हो जो मसीह में तुम्हारे अच्छे चाल चलन का अपमान करते हैं, लज्जित हो. ऐसे विवेक को पवित्र रखो. May your conscience be so clear, so clean, that the adversary will not find much chance to talk against you. दुनिया वालों के चाल से हट कर चलो. दुनिया की रीति को अपनाओ मत. दुनिया की तरह चलकर उसका एक्सप्लेनेशन देने से अच्छा है दुनिया से हट कर चलो. दुनिया मानोगे, परमेश्वर महिमा पाओगे. उंगली उड़ाने के लिए किसी को भी अवसर हम नहीं देते. आमेन. किसी को वे उंगली उड़ाने का अवसर नहीं देते. वे लज्जित हो जाएंगे ये आदर्श देखकर. They will look at me and my children. They will look at you and your posterity, and they will stand amazed. What a distinguishable people. So distinct they are from the ways of the world. Amen. वो लोग कहेंगे ये अद्भुत लोग हैं. Amen. ये अतिशय के लोग हैं. The world will stand amazed. ലോകം അത്ഭുതത്തോടെ പറയും, ഇവരുടെ മക്കളും വ്യത്യസ്തപ്പെട്ടവരത്രേ, ഇവർ നമ്മളുടെ വഴികളെ ഉപേക്ഷിച്ചവരത്രേ, ഇവർ ലോകക്കാരല്ല. ആമേൻ. ഇവരുടെ മധ്യത്തിൽ ഒരു സ്വർഗീയ രാജാവിന്റെ മുഴക്കമുണ്ട്. There is a shout of the king in their midst. Amen. इसलिए they walk worthy of the king in heaven. സ്വർഗത്തിലെ രാജാവിന് യോഗ്യമായ വിധത്തിലത്രേ അവർ നടക്കുന്നത്. स्वर्गीय राजा का एक जय घोष कोलाहल है इसके बीच में. इसके लिए उसके योग्य चाल वो लोग चलते हैं. क्योंकि यदि परमेश्वर की यही इच्छा हो तो भलाई करने के कारण दुख उठाओ, तो बुराई करने के कारण दुख उठाने से उत्तम है. Even if you have to suffer for this, for being a mighty witness, it's much better to suffer loss or suffer pain
डूइंग विकेड थिंग्स। दुनियादारी कर कर रोज रोते रहने से अच्छा परमेश्वर के लिए लड़कर कष्ट उठाकर आगे बढ़ना है। हालेलुया, हालेलुया। इफ यू सफर, वी सफर फॉर द लॉर्ड एंड फॉर द क्रॉस। हालेलुया। हसूली के गवाह है, हमने वो गीत गाया। हसूली के फौजी है, वी आर सोल्जर्स ऑफ द क्रॉस। आमेन। If you have to suffer, we will suffer for the glory of God, so that we also may be glorified in Him. Amen. कष्ट उठाना उठाएगा सूली के लिए, ताकि परमेश्वर के नाम अधिक महिमा पाए और हम भी उसमें महिमा पाते जाएं। 5वें अध्याय का पहला वचन, तुम्हें जो प्राचीन है वे उनके समान प्राचीन और मसीह के दुखों का गवाह और प्रकट होने वाली महिमा के सहभागी होकर उन्हें यह समझा था। Look at me. I am a witness. So मैं आपको उपदेश देता हूं as a fellow elder and a witness of the sufferings of Christ. मसीह के दुखों का गवाह मैं हूं। मसीह के सामर्थ्य का गवाह सिर्फ नहीं हूं मैं, मसीह के दुखों का। इसलिए कभी कभी गहरे पानी से गुजरना पड़ता, भट्टी में से होकर जाना पड़ता, पहाड़ों को चेतावनी देना पड़ता, लेकिन मैं जाऊंगा क्योंकि मैं गवाह हूं। मैं इस चमत्कारिक गवाह, मेरे चिन्ह और चमत्कार। इसलिए पौलुस कहता है मैं उसका विटनेस ऑफ द सफरिंग्स ऑफ क्राइस्ट। लेकिन सिर्फ एक ऐसा उसकी दुखों का गवाह नहीं है, महिमा में सहभागी हूं। आमेन। In the cross we gladly bear, then the crown we will wear. दुख उठाएंगे तो ताज पाओगे। इसलिए मसीहा भविष्यद्वक्ता के द्वारा सुना, उसको राख को मिटाऊंगा, विलाप के राख को मिटाऊंगा, मुकुट पहनाऊंगा। That is why the servant of God Isaiah was screaming down our ears, I will crown them with glory. Amen. I will wipe off the ash of lamentation and shame. Amen. लज्जा दूर करेगा, महिमा से धारण कराऊंगा। पौलुस कहते मैं हूं। इसलिए पौलुस ने कहा, मेरा पत्रस कहते, पत्रस ने पौलुस कहा, माफ करो। पत्रस कहता कि मैं भी ऐसा हूं तो दुख का गवाह। पौलुस तो पहले ही हम उसे सुनाया था, उसका दुख में सहभागी होना, तब इसको महिमा के मैं पाऊंगा। माफ करना। पत्रस भी वही कहता, सारे परमेश्वर के संत लोग वही कहते हैं। आमेन। वे उसके दुखों का गवाह बनेंगे, महिमा का सहभागी बन जाएंगे। आमेन। Will be witnesses of the sufferings of Christ and will be partakers in the glory. This is the assurance we have been given. पत्रस के द्वारा हम ये पढ़ते हैं। हम अभी यूहन्ना के पास चले जाते हैं। बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना नहीं, प्रेरित यूहन्ना के पास जाते हैं। 1 John 1:1। उस जीवन के वचन के विषय में जो आदि में से था, जिसे हमने सुना और जिसे अपने आंखों से देखा, वरन जिसे हमने ध्यान से देखा और हाथों से छुआ। Amen. That which was from the beginning, which we have heard, which we have seen with our eyes, which we looked upon and have touched with our hands concerning the word of life. Amen. We are witnesses of that person. हम उसके गवाह हैं। ये आजकल हुई बात नहीं है। अब आज पूरा सुन के आया, आरंभ से सुन के आया, वही यहोवा परमेश्वर है, पृथ्वी पे आया है, इंसान बनकर आया है। हमें जैसे पहले से परमेश्वर के गवाह लोग चलते आए हैं, हमें उसके समान हम भी आगे बढ़ते हैं, हम भी गवाह बनकर चलते हैं। आमीन। पहले पुस्तक से हम ये देख के आया, आरंभ से हमने जो सुना था, हमने जो देखा है, हमने आंखों से देखा, हम उसका दर्शक बने रहा। We received the same glorious vision. Amen. We have understood the scriptures.
As Jesus has revealed that to us, amen. पवित्र शास्त्र को हमने ग्रहण किया, ये वचन जो आदि से था, हमने सुना और हमने उसको आंखों से देखा, क्योंकि वो देहधारी बनकर आया। वही वचन यहाँ देहधारी बनकर आया, हमने आंखों से देखा। When he came in flesh, we beheld him with our eyes and we looked upon him, we critically examined him. इतना ही नहीं देखा, हमने ध्यान से देखा और परखा। हम उसको जानता है, हम उसको जानते हैं, हमने उसको छुआ, उसने हमें छुआ और हमने उसको छुआ। He touched us and we touched him. Amen. लेन देन हुआ, विनिमय हुआ, there was sweet exchange. Amen. We know him as much as he knows us. Amen. हम जानेंगे उसको जितना वो हमको जानता। Amen. We will know him more and more. So we are witnesses. उसके गवाह हम हैं, इसलिए हम गवाह हैं, इसलिए हम गवाही देता। ऐसी वे न कहता, तीसरे अध्याय में चले जाता, पहले 3 वचन हम बाहर जानते हैं, हम बहुत जल्दी पढ़कर छोड़ते हैं। पिता ने हमसे कितना प्रेम किया, कैसा प्रेम किया कि हम परमेश्वर की संतान कहलाए, और हम हैं जरूर। Amen. What manner of love the Father has given to us, lavished upon us, that we should be called the children of God, and so we are. शक नहीं है, संदेह नहीं है, ഒരു സംശയത്തിനുടെ ഇല്ലാതെ വണ്ണം പിതാവ് ഇത്ര വലിയ സ്നേഹം നമ്മുടെ മേൽ ചൊരിഞ്ഞിട്ട് നമ്മെ ദൈവമക്കളാക്കി തീർത്തിരിക്കുന്നു। നാം അങ്ങനെ തന്നെയാകുന്നു। Man, हम ऐसा ही है। इस कारण संसार हमें नहीं जानता, दुनिया को नहीं मालूम होगा। हालेलुया, हम परमेश्वर के संतान हैं। आमीन। लेकिन पवित्र आत्मा जानता। दूसरा वचन कहते हैं, प्रियो, हम परमेश्वर की संतान है। और एक बात, we are his children, so we are his witnesses, because he said, I and my children will be signs and wonders and mighty witnesses. हम उसके संतान होने के नाते, because we are his children, we are his witnesses. Amen. अभी तक ये प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ पाएंगे। हम अभी महिमा प्राप्त कर आगे आगे बढ़ते हैं। We are growing from glory to glory. It's still not exhibited. Amen. The end-time glory of the church of God. परमेश्वर की कलीसिया की अंतिम महिमा अभी तक प्रकट नहीं किया गया। It will be revealed. The end-time glory of the church of God. The glory and beauty of his bride will be revealed. उसकी दुल्हन की शोभा और महिमा, अंतिम महिमा अब तक प्रकट नहीं हुआ, प्रकट होगा। मैं हम उसके समान बन जाएंगे। आमीन। उसको वैसा ही देखेंगे। हम पिछले द्वार का हमने सुना, हम उसको देखेंगे, ऐसा ही नहीं देखेंगे। So clad, so clothed, so gloriously decorated, we shall behold him. हम ऐसे ही नहीं देखेंगे, फटीचर की तरह नहीं देखेंगे। महिमावान होकर, शोभायमान होकर, अति सुंदर वस्त्र पहनकर, मुकुट पहनकर, हालेलुया, हम राजा के सम्मुख खड़ा किया जाएगा। आमीन। तब हम यीशु के समान दिखाई देगा, उद्धित यीशु के समान। We will be like the resurrected Lord, so that we can behold his face. हम परमेश्वर का मुंह तब देखोगे जब यीशु के समान बन जाएगा। यीशु ने उसका मुंह को देखा है, तो यीशु समान बन जाता। यीशु ने कहा, मैं और मेरे संतान। Jesus says, I and my children. Amen. Who will be like me? And if I have seen the face of God, they will also see the face of Father God. Hallelujah. Hallelujah. क्या आशा है, क्या आशा है। ये सुंदर बात है। 11-12 पद खत्म करते हैं। क्योंकि जो समाचार तुमने आरंभ से सुना वो यह है कि हर एक दूसरे से प्रेम रखो। हम ये स्वर्गीय प्रेम में बढ़ते रहे। वो प्रेम प्रभु ने हमारे ऊपर बरसाया गया। हमें ये दुनिया का प्रेम नहीं, हम उससे धोखा नहीं खाते, हम उसमें हमारा समय नहीं बिताते, हमारा परिश्रम नहीं व्यय करते। We don't waste our energies and waste our time. They will all prove to be futile and useless. Amen. They will be the cause of our destruction. हमें ये दुनिया की कुछ भी चीज नहीं चाहिए। हमें हमारे पास ना समय है, हम इतने मूर्ख नहीं है, हम आगे बढ़ते हैं, हम स्वर्गीय प्रेम से मत्त हो जाएंगे। हालेलुया। हम उसमें बने रहेंगे, हम ये प्रेम प्रकट करेंगे, ये प्रेम कर हमें दूसरे को बढ़ा के जाएगा।
मिटोगे नहीं. They will not be seduced into destruction. They will not be tempted into eternal damnation. Hallelujah. हम उसको ऐसे जीवन का मार्ग दिखाएंगे, प्रोत्साहन देंगे, हाथ बढ़ाएंगे रास्ते से, अनेकों को खींच कर ले आएंगे स्वर्गीय प्रेम से मतवत होकर. इसलिए पौलुस ने कहा, The love of God constrains us. यह प्रेम है निर्बंध. राजा ने कहा निर्बंध पूर्व लेकर आ. यह प्रेम निर्बंधित करने वाले प्रेम है. आमीन. लोगों को आमंत्रित करते हैं परमेश्वर के संग मेल मिलाप के लिए. This is the love of God, this agape love that will fill our heart and keep constraining us so that we will invite others. We will even lovingly force others to be reconciled with God. Amen. 12 वचन ऐसे कहता है, और कैन के समान न बने जो उस दुष्ट से था और जिसने अपने भाई को घात किया. और उसे किस कारण घात किया? इस कारण कि उसके काम बुरे थे और उसके भाई के काम धर्म के थे. We won't get into Cain's ways. वो जलन के कारण उसको भाई को वध किया. हम ऐसे लोग नहीं हैं. We are not people who keep comparing and growing jealous. We are people who grow in the knowledge of the Lord, in the love of the Lord. Hallelujah. And leading many to glory. अनेकों को महिमा की ओर लेकर आने के लिए. कैन के जैसे परमेश्वर को वस्तुति छोड़कर जाने वाले नहीं होंगे. हाबेल की तरह ऐसे बलि चढ़ाएंगे. हालेलुया. अब्राहम की तरह चलेंगे, इसहाक की तरह चलेंगे, याकूब की तरह चलेंगे, यूसुफ की तरह चलेंगे, पौलुस की तरह चलेंगे, पतरस की तरह चलेंगे, स्तेफनुस की तरह चलेंगे. यीशु की अद्भुत कृपा से होगा. आइए हम अपने आप को प्रभु के हाथ में सौंप देते हैं. प्यारे पिता, प्रेमी परमेश्वर, हम तेरे गवाह हैं. We are the wondrous witnesses. Your signs and wonders. हम तेरे लिए चिन्ह और चमत्कार बनकर आगे बढ़ेंगे. चुप नहीं बैठेंगे, आलसी नहीं बनेंगे. हम जाते जाते अलौकिक कामों को देखेंगे और दुनिया आश्चर्यचकित होंगे. तुम अधिक महिमा पाएगा. हम भी महिमा से महिमा की ओर चलाए जाए. और एक बार इस जीवन को समर्पित करता, मेरे संतानों को तेरे हाथ में समर्पित करता. मैं और मेरे संतान तेरी ओर से चिन्ह और चमत्कार और अद्भुत गवाह बनकर रहेंगे, चमत्कारी गवाह बनकर रहेंगे. We will be such wondrous witnesses, mighty bold witnesses, I and my household. मेरी कलीसिया ऐसे बन जाएंगे. हालेलुया. तेरे सारे संत लोग ऐसे दृढ़ता से आगे बढ़ेंगे. तेरे नाम अधिक महिमा पाएंगे और महिमा प्राप्त कर आगे बढ़ते रहेंगे. प्रगति पाएंगे, घटनाएं घटेगी, अलौकिक बात होगी, शोभा बढ़ाया जाएगा. आमीन. This will be a glory walk from glory to glory. ये महिमामय शोभा यात्रा है. आमीन. महिमा से महिमा, जय से अधिक जय पाकर. हालेलुया. यीशु के नाम में आमीन. आमीन. पिता परमेश्वर का असीम प्रेम, निरंतर बने रहने वाली स्वर्गीय शांति, उसका पुत्र और हमारा मुक्तिदाता यीशु मसीह की कृपा, बहुत ऐसे अनुग्रह, चंगाई के सामर्थ, दृढ़ विश्वास, सनातन आशा, अलौकिक आनंद, हिम्मत, स्वर्गीय ज्ञान, समझदारी और सुरक्षा, पवित्र आत्मा परमेश्वर की धन्य संगति, सहभागिता और अगुवाई हम सबके साथ है. मंडली के हर परिवार के हर एक सदस्य के साथ, और जितने भी व्यक्तियों के विषयों के लिए हमने प्रार्थना का त्याग करना चाहिए, जिन्होंने भी हमसे प्रार्थना की मांग की, उन सबों के साथ, वो कितने भी दूर के और समीप के क्यों न हो, हमारे ही प्रिय देश हिंदुस्तान, उसके सारे नागरिक और अधिकारियों के साथ, और हमारे देश के और विश्व के सारे देशों के, ये कोविड-19 महामारी के कारण दुख संकट से गुजरने वाले लाखों लोगों के साथ, और पूरे विश्व भर के यीशु के सही संतानों के साथ, सेवा करने वाले लोगों के साथ, और खास कर अनेक तरह की
पीड़ाओं से गुजरने वाले हमारे भाई और बहनों के साथ और इसराइल के साथ भी सदा सर्वदा यीशु के पुनरागमन तक निरंतर बने रहे। आमीन और आमीन। प्रभु परमेश्वर आपके संग बने रहे, सुख शांति से रह के हर जरूरत को पूरा करे, सुरक्षित और तंदुरुस्त रखा करे। यीशु के नाम में आमीन आमीन। May the gracious Lord be with you all, keep you safe and secure in perfect health, give you peace, and meet every need of yours according to his riches in glory. Amen. I wish you all a very blessed and a glorious Lord's Day. A बहुत सुंदर और आशीषित धन्य प्रभु दिवस की शुभकामनाएं मैं सबको देता, यीशु के नाम में आमेन। गॉड ब्लेस।